Hello viewers, today we shall talk about Liang-Barsky's line clipping algorithm. Last time we had talked about how a particular clipping window is to be considered and we use the parametric equation of line in case of Liang-Barsky's algorithm. Now imagine as if there are four different window boundaries and there is a line from point A to point B. We should understand that the parametric equation of this particular line is given as x is equal to x1 plus u delta x, where delta x is x2 minus x1. Y is equal to y1 plus u delta y, where delta y is equal to y2 minus y1. And the value of u varies from 0 to 1. Please understand that at the value of u equals to 0, we are at this point A, the first point or the leftmost point. At the value of u equals to 1, we say that we are at this particular point B. Remember that the value of u can be taken from minus infinity to plus infinity, which means that there is an infinite extension of the line. Okay, there is an infinite extension of the line which crosses which intersects almost every window boundary. For example, look at the infinite extension of this line which is intersecting with the bottom window boundary somewhere here, the left window boundary at this point, the top window boundary at this point, and the right window boundary at this point, right? So we can say that the infinite extension of line intersects with each and every boundary's infinite extension. Out of this, we have to find out which particular boundary intersection is correct for our purpose. Say for example, to find out this point, we can use two values of u. This value can be given as u1, this value can be given as say u2. Okay, so when we have to calculate the value of u1, what do we do is this, that we calculate u1 equals to, see very carefully, it is maximum value. Maximum of what? Maximum of three quantities, which is 0, the u value for the left window boundary and the u value for the bottom window boundary. Means ये जो हमारे पास यहाँ बॉटम बाउंड्री और लेफ्ट बाउंड्री पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर यू वैल्यूज आ रही हैं और साथ में 0 रखते हुए ये जो सेट बनेगा, इस सेट में से जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट पार्टिकुलर वैल्यू विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ u1. सिमिलरली वी कैन हैव u2 हियर, हमारे पास u2 हो सकता है विच इज गोइंग टू बी मिनिमम किस का होगा, 1 का, प्लस साथ में u वैल्यू जिसमें हम राइट विंडो बाउंड्री से और u वैल्यू जिसपे कि हम टॉप विंडो बाउंड्री के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे. नाउ इफ एट द एंड मींस आफ्टर कैलकुलेटिंग u1 एंड u2, if u1 is less than u2, then we say that the line has to be clipped and its visible portion lies between u1 and u2. But in case if u1 is greater than u2, remember this thing, if u1 is greater than u2, it means that the line is not visible. Line is not visible and it does not falls between the clipping region. Now let us try to understand how we will make this calculation. You know that this particular parametric equation of line represents one single point, right? Means we will keep changing the value of u from 0 to 1, and at each and every value of u, you will get one single point on this particular line. Okay, on this line you will get 1 point. Now whether that point is within the clipping window or not, to verify this, what we have to do, we have to talk in terms of the point clipping. What does point clipping says to us? The point clipping says that for being a particular point within the clipping window, it has to serve and follow, it has to fulfill certain inequalities. See, you will remember the point clipping with this particular expression. This value, that is x1 plus u delta x, what does it represents? x1 plus u delta x. It is representing the x value of a point. What does this represents? y1 plus u delta y. It represents the y value of the point. Now if this is the xy coordinate of any point, this point lies within the clipping window only if the x point is less than equal to xw maximum and is greater than equal to xw minimum. Similarly, the y value lies within the clipping window if this point y is greater than y minimum and is less than y maximum.
you can see that there are 4 inequalities. Okay, this one, that is this much portion, is the first inequality. This is related to the left window. This one is the right window boundary inequality, and this is how you can see that how we are going to use these inequalities. Now they are saying that rewrite these inequalities in the form of, say the form is UPK is less than equal to QK. Okay, for the value of K, for you can write here, for K equals to 1 2 3 4. ओके, K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास? 1 2 3 4 होनी चाहिए, ठीक है ना? which means that 1 means one boundary, 2 means another boundary, like that. Okay, now how to bring these expressions into UPK is less than QK? See how we will do it. First of all, look at this particular portion of the inequality which says that XW minimum is less than equal to X1 plus U delta X. Now we know that the term which is in multiple of U has to be taken to the left hand side of the expression, and remaining everything has to be taken on the right hand side. So out of this expression you will take this U delta X to the left hand side and XW minimum to the right hand side. So what you will get? You will get here U delta X, that is minus U delta X, is less than equal to X1 minus XW minimum. Similarly, look at this particular inequality. X1 plus U delta X is less than equal to XW maximum. Now in this आप क्या देख सकते हो कि U delta X less than equal to टर्म के लेफ्ट में ही है, तो इसको तो हमें कहीं शिफ्ट नहीं करना, लेकिन X1 को हमें राइट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट यू विल गेट हियर U डेल्टा X, अब देखिए यहाँ साइन पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव आया है, इज लेस देन इक्वल टू XW max minus X1, or in some books you will find X max minus X1. It means the same thing. Similarly, we can rearrange the other two inequalities also. Means this is for the left window boundary. इसमें देखिए U डेल्टा Y को आपको कहाँ लाना है? लेफ्ट हैंड साइड लाना है, क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसा है कि U वाला जो टर्म होगा वो लेफ्ट में होगा. तो अगर आप यहाँ से U डेल्टा Y को लेफ्ट में लाएंगे और इस Y मिनिमम को आप इधर ले जाएंगे, तो क्या हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी? देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी, दैट एक्सप्रेशन विल बी माइनस U डेल्टा Y इज लेस देन इक्वल टू Y1 माइनस YW मिनिमम और Y मिनिमम, जो भी आप यूज करना चाहें. सिमेट्रिक ले लीजिए, यहाँ पर भी हमारे को W यूज करना चाहिए, यहाँ पर भी W यूज करना चाहिए, ठीक है ना. नेक्स्ट इज वी हैव टू टेक दिस राइट टॉप विंडो बाउंड्रीज इनइक्वालिटी. क्या कहती है हमारी इनइक्वालिटी? Y1 प्लस U डेल्टा Y इज लेस देन इक्वल टू Y मैक्स, YW मैक्स. इसमें U डेल्टा Y पहले से ही लेस देन इक्वल टू साइन के लेफ्ट में है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ Y1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? यू विल गेट U डेल्टा Y, देखिए पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल, YW मैक्सिमम माइनस Y1 को राइट हैंड साइड ले जाइए. You can see that these four terms are according to the respective boundaries. Means this is for the left window boundary, this is for the right window boundary, this is Y minimum, so it is for the bottom window boundary, and this is for the top window boundary. ये top window boundary के लिए expressions है हमारे पास. Now see how we have to judge and make the necessary calculations. Okay, now go step by step. First point is फॉलोइंग चीजें, ये बातें आपको ध्यान देने वाली हैं, इनको ऑब्जर्व करिए और ध्यान से देखिए. पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पॉइंट आपसे ये कहता है यहाँ पर कि इफ से फॉर एग्जांपल, पहली कंडीशन चेक करिए कि इफ पीके इज इक्वल टू 0, मींस ये जो ऊपर हमारे पास पीके, अब पीके क्या कहलाएगा? व्हाट इज पीके एंड व्हाट इज क्यूके? कैसे समझेंगे आप? देखिए जरा ध्यान से. हमने क्या लिखा था एक्सप्रेशन में? यू पीके इज लेस देन इक्वल टू क्यूके. तो लेफ्ट हैंड साइड में U के अलावा जो भी टर्म है वो P के है. जैसे यहाँ क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में? माइनस U डेल्टा X, तो U और U को हटा दो तो P के कितना हो गया? माइनस डेल्टा X. यहाँ पर P के कितना होगा? डेल्टा X. यहाँ P के कितना है? माइनस डेल्टा Y. यहाँ P के कितना है? डेल्टा Y. सिमिलरली जो राइट हैंड साइड में है इट इज Q के, तो Q के यहाँ पर कितना है? X1 माइनस XW मिनिमम. यहाँ पर कितना है? XW मैक्सिमम माइनस X1. यहाँ पर कितना है? Y1 माइनस YW मिनिमम. यहां पर Q के कितना है? YW मैक्सिमम माइनस Y1. तो जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है हमारी Q के. तो अगर हमारे पास किसी भी केस में किसी भी पार्टिकुलर लाइन के लिए PK की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन इज पैरेलल.
ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि पैरेलल किसके है, तो ध्यान दीजिए पैरेलल होगी उस पार्टिकुलर विंडो बाउंड्री के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये वाली जो पीके की वैल्यू है दूसरे नंबर वाली ये 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट विंडो बाउंड्री है उसके साथ में हमारी कोई भी पार्टिकुलर जो लाइन गिवन है वो पैरेलल है। ठीक है, ध्यान रखिए राइट और लेफ्ट दोनों बाउंड्री से वो पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू राइट विंडो बाउंड्री इट इज ऑल्सो पैरेलल टू द लेफ्ट विंडो बाउंड्री, राइट। नाउ इन बोथ दीज केसेस इफ पीके इज इक्वल टू 0 लाइन इज पैरेलल टू द कॉरस्पॉन्डिंग विंडो बाउंड्री एज वेल एज, दो बातें और ध्यान देंगे इसके साथ में। ठीक है, अगर साथ में हमारे पास जो क्यूके की वैल्यू है, अगर वो क्यूके की वैल्यू हमारी लेस देन 0 है, ओके, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्यूके हमारा लेस देन 0 होगा या फिर क्यूके हमारा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो इफ क्यूके इज लेस देन 0 तो इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइन जो है लाइन इज आउटसाइड। ठीक है, किसके आउटसाइड है, उस पार्टिकुलर विंडो बाउंड्री के आउटसाइड। और अगर वो क्यूके हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज डैश, ओके, दिस इज डैश क्यूके। क्यूके is less than 0 means line is outside that window boundary. If QK is greater than equal to 0, it means that the line is inside the boundary. Okay, line is inside the boundary. ये ध्यान रखिएगा, लाइन कहां पर है, बाउंड्री के अंदर। ठीक है, अब आफ्टर दिस व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज विद पीके। अब पीके की दो वैल्यूज और हैं, या तो पीके हमारा नेगेटिव हो सकता है या पीके हमारा पॉजिटिव हो सकता है। तो से फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर पहली वैल्यू लेता हूं, मान लो कि हमारा जो पीके की वैल्यू है इट इज लेस देन 0 मीन्स पीके इज नेगेटिव। इफ पीके इज नेगेटिव तो इट मीन्स दैट जिस किसी भी विंडो बाउंड्री के लिए पीके नेगेटिव होगा तो इट मीन्स कि जो हमारी लाइन है वो कहां से कहां के लिए जा रही है, द लाइन इज गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, द लाइन इज गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड दैट पार्टिकुलर विंडो बाउंड्री, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है। ओके, सिमिलरली अगर हम दूसरा केस लेते हैं यहां पर कि हमारा पीके यानी जो वैल्यू ऊपर पीके की आ रही है अगर वो ग्रेटर देन 0 है मींस पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन जो है लाइन इज गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द विंडो बाउंड्री, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है लाइन। ओके, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, इनसाइड टू आउटसाइड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा व्हेन द वैल्यू ऑफ पीके इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है कि जब पीके की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब नॉट इक्वल टू 0 वाला कौन सा केस है, जिसमें कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। व्हेन पीके इज नॉट इक्वल टू 0 उस केस में हम ये मानते हैं कि लाइन हमारी जो है वो चारों विंडो बाउंड्री से इंटरसेक्ट कर रही है, और जिस पार्टिकुलर पीके की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो हम निकालते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे आप, यहां पर एक सवाल आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपका निकलेगा उस पर यू की वैल्यू कितनी आएगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर यू की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, यू की वैल्यू हमारी आती है, कैसे निकालते हैं आप, देखिए ये ऊपर हमने एक इनइक्वालिटी रखी थी यहां पर आपके लिए, दैट इज क्या थी इनइक्वालिटी हमारी, यू पीके इज लेस देन इक्वल टू क्यूके। तो यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्वल टू कर दीजिए और क्यूके अपॉन पीके कर दीजिए, तो आप क्या मिलेगा आपको यहां पर, दैट यू इज गिवन टू बी एस, यू कितना आ जाएगा आपका, यू इज इक्वल टू क्यूके डिवाइडेड बाई पीके। ये जो u की वैल्यू है ये हमें क्या प्रोवाइड करेगी, दिस विल गिव यू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन विद द कॉरस्पॉन्डिंग विंडो बाउंड्री। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमने कुछ एक पॉइंट्स देख लिए, इस तरह से हमें डिसाइड कर सकते हैं कैसे हम लोगों को किन फैक्टर्स का हमें ध्यान देना है। सिमिलरली अब इसके आगे हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से आप इस लाइन का वैल्यू को कैलकुलेशन करें। तो आप देखिए जो एल्गोरिदम है लियांग-बास्काई का, दैट इज ए 4 स्टेप एल्गोरिदम, और वो 4 स्टेप एल्गोरिदम कैसे काम करता है उसको हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप होगा हमारा स्टेप नंबर 1, आप देखिए यहां पर ध्यान से, स्टेप नंबर 1 क्या है एल्गोरिदम का, इफ पीके इज इक्वल टू 0 एंड साथ में क्या है क्यूके इज लेस देन 0, मतलब पीके 0 है और क्यूके हमारा नेगेटिव है, इट मीन्स दैट द लाइन फॉल्स इनटू द इनविजिबल कैटेगरी, आप उस लाइन को छोड़ सकते हैं, मीन्स वो लाइन हमारी आउटसाइड है, द लाइन इज आउटसाइड। तो इस केस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वहीं अपने इस लाइन की प्रोसेसिंग खत्म कर देंगे। बट इफ दिस इज नॉट द केस, अगर ये केस नहीं है तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, आप स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं। स्टेप नंबर 2 आपसे क्या कहता है वो देखिए। स्टेप नंबर 2 ऑफ द एल्गोरिथम सेज दैट कि आप सबसे पहले ये देखेंगे किस किस के लिए पीके इज लेस देन 0 है, मींस
फॉर ऑल के, क्या देखना है आपको, सच दैट pk इज लेस देन 0. अब व्हेन आई से pk इज लेस देन 0 इट मींस pk इज नेगेटिव. आप क्या कैलकुलेट करेंगे, यू विल कैलकुलेट rk इज इक्वल टू qk अपॉन pk, जो कि हमने अभी वैल्यू आपको निकालना बताई थी. हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं u की, हम उसे कैसे निकालेंगे, qk अपॉन pk. और फिर एक सेट बनाएंगे u1, ध्यान दीजिए u1, और u1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ. अब ध्यान दीजिए कैसे ले रहा हूं मैं, जिन सभी k के लिए pk की वैल्यू नेगेटिव है उन सब में u की वैल्यू कैलकुलेट करो और उसे एक पार्टिकुलर सेट में डाल दो. और वो सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, इन टोटल 3 एलिमेंट्स. देखिए ध्यान से, पहला एलिमेंट तो होगा उसका दैट विल कंटेन 0, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इज 0, एक एलिमेंट 0 रहेगा. और फिर जिस जिस पीके के लिए वैल्यू नेगेटिव आएगी वो सारी वैल्यूज आर की सारी वैल्यूज हमारे पास R1 R2 वो सारी वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी. इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम किसको असाइन कर देंगे, दैट वैल्यू विल बी असाइन टू u1. तो इस तरह से हमें एक u पॉइंट मिल जाए, u1 वैल्यू मिल जाएगी. स्टेप नंबर 3 देखिए, फॉर ऑल k, मतलब उन सभी वैल्यूज के लिए k की, सच दैट कि हमारा pk जो है वो क्या है, इट इज ग्रेटर देन 0, pk की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. यहां पर भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करेंगे आप लोग, यू विल कैलकुलेट rk इज इक्वल टू qk अपॉन pk. आप ये कैलकुलेट करेंगे यहां पर, और सिंपली फिर इसके बाद क्या करेंगे, यू विल क्रिएट अनदर वैल्यू ऑफ विच वी विल कॉल एज u2, इसे हम u2 कहेंगे. और u2 को आप कौन सी वैल्यू असाइन करोगे, u2 को आप वैल्यू असाइन करोगे मिनिमम. किसका मिनिमम असाइन करोगे, इसके अंदर एक वैल्यू तो रहेगी 1, और उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हमारे पास जो r की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएंगी वो यहां पर आ जाएंगी, जिनके लिए pk हमारा जो है वो पॉजिटिव रहेगा. इन तीनों में से आपको एक 3 या 4 जो भी वैल्यूज आती है उनमें से आपको एक वैल्यू किसमें चूज करनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो किसमें देंगे आप, u2. स्टेप नंबर 4, एल्गोरिथम का स्टेप नंबर 4 क्लियरली हमें डिफाइन करता है कि हमें क्या करना है. इफ इन दिस केस आफ्टर कैलकुलेटिंग u1 एंड u2, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, तो इसका मतलब क्या है, दैट द लाइन इज आउटसाइड. ठीक है ना, लाइन इज कंप्लीटली आउटसाइड. इट मीन्स दैट लाइन इज completely outside. Hence the line can be ignored. लाइन को हम इग्नोर कर सकते हैं. अदरवाइज वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2. अगर u1 इज लेस देन u2 है, ध्यान दीजिए, अगर u1 ग्रेटर देन u2 है तो आपको लाइन को छोड़ देना है, लाइन आउटसाइड है. और अगर u1 इज लेस देन u2 है तो फिर हम क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर u1 और u2 की वैल्यू से लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे. थैंक यू. नाउ कंसिडर दिस न्यूमेरिकल दैट वी हैड यूज्ड इन केस ऑफ मिड पॉइंट सबडिविजन मेथड. राइट नाउ इन दिस वी आर हैविंग अ लाइन फ्रॉम 1 1 -1 to 18, 15. Now we should apply this or you can say clip this particular line using the midpoints, this particular Liang-Barsky algorithm. Now in case of Liang-Barsky algorithm, what do we use first, what do we calculate first is delta x and delta y. What will be the value of delta x? Delta x is equal to 18 minus -1, it goes to be 19. What is the value of delta y? It goes to be y2 minus y1, that is 15 minus -1, so it goes to be 16. So we have got both the values, we have got delta y and delta x. Now using the expressions that we had seen earlier, we can write down the expression in terms of upk is less than equal to qk. See how you will write down. For the left window boundary you write down, क्या expression थी हमारे पास, we say minus delta x minus u delta x. So you will write here, the first line will come to be equal to this much, that is minus 19u is less than equal to, what is qk? qk here is calculated as for left window boundary as x1 minus x minimum. अब x1 कितना है यहाँ पर, -1, और x minimum कितना है 4, तो -1 minus 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5. सिमिलरली सेकेंड हमारे पास क्या लाइन होती थी, u डेल्टा x विच इज 19u नाउ इज लेस देन इक्वल टू, नेक्स्ट कैलकुलेट करिए, व्हाट इज द वैल्यू हियर, दैट इज x max माइनस x1. अब x max कितना है हमारे पास 16 माइनस x1 कितना है -1, तो 16 माइनस -1 कितना हो जाएगा 70. नेक्स्ट वैल्यू इज दैट यू हैव इज माइनस u डेल्टा y. So minus delta y कितना है यहाँ पर 16, तो you will have minus 16u is less than equal to,
दैट इज y1 माइनस y मिनिमम। y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 माइनस y मिनिमम कितना है 3, तो -1 माइनस 3 हाउ मच इट विल कम आउट टू बी, इट कम्स आउट टू बी -4। नेक्स्ट वन इज u डेल्टा y दैट इज 16u इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, क्या होता है एक्सप्रेशन y मैक्सिमम माइनस y1। y मैक्सिमम कितना है हमारे पास 11 माइनस y1 कितना है -1, तो 11 माइनस -1 इट बिकम्स 12, राइट। So these are the 4 equations for left window boundary, right window boundary, bottom and top। आप इसमें एक बात पर और ध्यान दो, सिंस हमें जो कैलकुलेशन करना होता है U1 और U2 सेट का, वो किसके हिसाब से करना होता है कि सारी नेगेटिव वैल्यूज हमें एक तरफ इकट्ठी करनी होती है और सारी पॉजिटिव वैल्यूज हमें एक तरफ इकट्ठी करनी होती है। तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, मगर हमने माइनस और माइनस को आपस में कैंसिल नहीं किया। यहां भी देखिए आप माइनस माइनस हम इसे कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्रुपिंग किसके हिसाब से करनी है, पीके की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के हिसाब से। अब याद करिए हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, हम U1 को कैलकुलेट करके निकाल रहे थे। अब ध्यान देखिए U1 कैसे निकल रहा था हमारा, U1 याद करिए मैक्सिमम वैल्यू थी किसके हिसाब से, मैक्सिमम ऑफ एक सेट, उसमें 0 भी था और साथ में वो सारी वैल्यूज आनी थी जिनके पीके की वैल्यू कितनी आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। तो अब यहां देख सकते हैं कौन कौन से पीके नेगेटिव है, तो एक तो ये नेगेटिव है और दूसरा ये नेगेटिव है। तो अब जब आप इसकी वैल्यू किसके संग क्लब करेंगे, अब इसे U1 में जाना है, ये माइनस वाला इसे U1 में जाना है। तो U1 में देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, u इज इक्वल टू -5 और -19। अब माइनस माइनस हटा दो आप, तो व्हाट यू विल गेट हियर 5/19। सिमिलरली यहां क्या आ जाएगा 4/16 यानी 1/4। ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है। इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इट इज 5/90, ये मैक्सिमम है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज U2। व्हाट इज U2, कैसे निकालते हैं हम लोग, मिनिमम कौन से सेट का, उसमें एक एलिमेंट होता है 1 और बाकी एलिमेंट जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं यहाँ पर पीके की, उन सबको हम किस में ग्रुप करते हैं, U2 में ग्रुप करते हैं। तो अगर इससे आप U निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 17/19 और इससे आप U निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12/16 विच इज 3/4। इन तीनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू लेनी है, 3/4, मतलब मिनिमम लेना है, तो तीनों में से मिनिमम कौन सा हो जाएगा 3/4। यानी हमें क्या मिल गया, U1 की वैल्यू है हमारी 5/19 और U2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3/4। यहां पर ये चीज भी वेरीफाई हो गई कि हमारा जो U1 आ रहा है इट इज लेस देन U2, मतलब ये लाइन थोड़ी सी क्लिप होकर के क्लिपिंग विंडो के अंदर डिस्प्ले हो रही है। अगर U1 U2 से बड़ा होता तो हम ये मान लेते हैं कि लाइन टोटली बाहर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करके निकालना है, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एक पॉइंट आपको मिलेगा U1 की वैल्यू से, दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा U2 की वैल्यू से। अब देखिए आप सबसे पहले U1 की वैल्यू का यूज करके एक पॉइंट कैसे निकालेंगे। आपका पॉइंट की x और y कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, वो देखिए x इज इक्वल टू x1 कितना है -1 प्लस u की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 5/19 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है हमारा 19 और इसी u की वैल्यू के लिए आप निकालोगे y कोऑर्डिनेट। तो y1 कितना है हमारा, y1 इज -1 प्लस ध्यान दीजिए u की वैल्यू में सेम ले रहा हूं कितनी 5/19 मल्टीप्लाई विद डेल्टा y दैट इज 16। देखिए आप मैंने हर जगह पर वैल्यूज जो है u की वो दोनों जगह सेम रखी है। जब मैं यहां पे आऊंगा तो मेरी u की वैल्यू कितनी 19 कैंसिल, -1 + 5 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आप तुरंत समझ सकते हैं कि x की वैल्यू 4 किससे रिलेट कर रहा है, इट इज रिलेटेड टू द लेफ्ट विंडो बाउंड्री, ठीक है ना। और y की वैल्यू इस केस में जो निकल के आएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी, वो कितना आ रही है आपके पास 16 5 are 80 80/19 -1 + 80/19 तो इट इज कमिंग आउट टू बी नियरली 61/19। मीन्स एक कोऑर्डिनेट जो आपके पास आएगा एट द वैल्यू ऑफ u1 दैट कोऑर्डिनेट xy पॉइंट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4,61/19। और दूसरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट विद द लेफ्ट विंडो बाउंड्री, ओके। नेक्स्ट जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो कैसे आप निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, अगेन फिर से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहां पर x विल बी इक्वल टू -1 प्लस, अब जो आपको u की वैल्यू यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है, यू विल नाउ यूज u2 और u2 कौन सा चूज करना था आपको, मिनिमम इन तीनों में से, दैट इज 3/4, ओके। तो अब आप u2 की वैल्यू लेंगे 3/4, तो यहां पर आप क्या रखेंगे, यू विल राइट हियर 3/4 इंटू डेल्टा एक्स विच इज 19, इसको निकालना पड़ेगा और y इज इक्वल टू -1 प्लस, फिर से आप u की सेम वैल्यू ले रहे हो मल्टीप्लाइड विद 16 विच इज डेल्टा y, इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ आप इसको करके देखिए कितना आ रहा है, तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 4 बचेगा आपके पास, दिस विल रिजल्ट टू 4 1 4 into 3 12 -1 + 12 goes to be equal to 11। बाय टेकिंग दैट y इज इक्वल टू 11 दिख रहा है आपको, तो आप तुरंत क्या समझ जाओगे कि ये हमारी किससे डील कर रहा है,
टॉप विंडो बाउंड्री से डील कर रहा है, क्योंकि उससे साथ में हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब आप इसकी वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है? दिस इज 19 3 कितना होगा? 19 3 इज 57/4। ओके, 57/4 -1 plus 57/4, तो इट गिव्स यू -4 plus 57, तो इट बिकम्स 53/4। ओके, ध्यान दीजिए, द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 53/4 एंड दिस वैल्यू गोज टू बी नियरली इक्वल्स टू, you can say the coordinate will come out to be how much? 53/4, 11. This is going to be our x and y coordinate. So this is how you can find out the 2 points of intersection of the line which is going to be visible to us. Thank you. If there are any questions, you can ask back.